So the next topic that we are going to discuss is renin-angiotensin-aldosterone system, which is also known as RAS. Here we will discuss some general points about this system. Then we will discuss the stimuli that which activate RAS, and then we will see the mechanism of action. Right. So this is one of the mechanisms of long-term control of blood pressure. ये जो mechanism होता है, this starts with the release of renin, and renin is released from the juxtaglomerular cells of the kidney. So what actually are the juxtaglomerular cells? Let's see. So as we can see that I am making a nephron here. So this is the Bowman's capsule. Then we have this proximal convoluted tubule. Then as we go down, we have the loop of Henle. This is the thin descending limb of the loop of Henle. Then we have the thin ascending segment of the loop of Henle. Then we again have these, the thick ascending segment of the loop of Henle, and then we have the distal convoluted tubule. This is actually very proximal. The distal, let me just make it once more. Yes. So this is the distal convoluted tubule. Then it joins the collecting duct. So here we see that these are the afferent arteriole, right? And this is the efferent arteriole. This is the afferent arteriole. This is the efferent arteriole. So the endothelial cells of the afferent arteriole, right? These get modified into JG cells, or the juxtaglomerular cells, right? And here itself, the cells of the DCT, that is the distal convoluted tubule, they get modified to form macula densa, right? We study about the JG apparatus, right? So these are the two cells that make the JG apparatus. The third cell that is involved in making the JG apparatus, or the juxtaglomerular apparatus, is the extraglomerular mesangial cell that is present here, right? It is also known as the Lassus cell, and it is phagocytic in nature. The extraglomerular mesangial cell. Okay. So now we know what are the JG cells, right? So अब renin से कैसे release, renin is how it is released from the JG cells. So there are pressure sensitive baroreceptors that are present on the JG cells. So once they sense that the arterial pressure is decreasing, so they will start releasing renin. The second mechanism is decreased NaCl delivery to macula densa, right? So what this actually implies is कि अगर हमारे पास जो ब्लड फ्लो होगा वो कम होगा, तो GFR भी कम होगा, राइट? अगर GFR कम होगा तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होने के बाद NaCl का बहुत कम NaCl मैक्युला डेंसा तक पहुँचेगा, राइट? दिस विल एक्चुअली एक्टिवेट द रिलीज ऑफ रेनिन. बेसिकली क्या हो रहा है कि ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है टू द एफरेंट आर्ट्रियोल, उसकी वजह से GFR कम हो रहा है. GFR वैसे ही कम है, ऊपर से NaCl का जितना नॉर्मली एब्जॉर्प्शन होना था हो गया, मैक्युला डेंसा तक बहुत ही कम NaCl पहुँच रहा है. सो इसीलिए रेनिन रिलीज हो रहा है, राइट? तो डिक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर विल अल्टीमेटली रीच टू डिक्रीज्ड NaCl डिलीवरी टू मैक्युला डेंसा, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड. अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी गेट्स इंक्रीज, दिस विल स्टिमुलेट द बीटा रिसेप्टर्स ऑन JG सेल्स. हमने बात किया था ना, alpha 1 and beta 1 receptors. Alpha 1 receptors are present in all of the organs except in heart and JG cells, where beta 1 receptors are present for the stimulation, right? So beta 1 receptors stimulate हो जाएंगे and this will cause the release of renin. So now अब क्या क्या स्टिमुलस हो सकते हैं जो कि रेनिन को रिलीज करेंगे या फिर रास को एक्टिवेट करेंगे? सो दीज आर anything that decreases effective circulating blood volume. What does this term actually mean? वो blood जो कि vessels में present है, right? There might be fluid that might be present all over the body, but that won't count as circulating blood volume. Circulating blood volume वही होता है जो कि vessels के अंदर present है, right? तो अगर hemorrhage हुआ, blood loss हो गया, तो arterial pressure कम हो जाएगा, BP कम हो जाएगा, तो renin रिलीज होने लगेगा, राइट? रास एक्टिवेट हो जाएगा. हाइपोनेट्रीमिया सिंपली मीन्स कि NaCl की डिलीवरी कम हो जाएगी मैक्युला डेंसा पर, राइट? तो बेसिकली Na की डिलीवरी कम हो जाएगी. बट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर कि Na और Cl दोनों की डिलीवरी भी अगर कम होगी तो भी क्या कहते हैं, हमारा रास एक्टिवेट हो जाएगा. नेक्स्ट इज सिरोसिस, CHF एंड प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग.
in these three cases what we see कि इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम बहुत कम है. सिरोसिस में बेसिकली क्या होता है, पेशेंट को एसाइटिस हो जाता है, उसके जो पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम में फ्लूइड भर जाता है, ब्लड में इतना वॉल्यूम नहीं बचता, सारा वॉल्यूम पेरिटोनियम में ही आ जाता है. तो सर्कुलेटिंग जो इफेक्टिव वॉल्यूम है, सर्कुलेटिंग इफेक्टिव वॉल्यूम, दैट इज अल्टीमेटली डिक्रीज्ड, इसलिए रास एक्टिवेट होता है. सेम हैपन्स विद CHF एज वेल. CHF में क्या होने लगता है कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स ऑफ हार्ट पंप नहीं करते. अगर राइट वेंट्रिकल पंप नहीं करेगा तो ब्लड विल कलेक्ट इनटू राइट एट्रियम, फिर वही राइट एट्रियम में ज़्यादा ब्लड कलेक्ट होगा तो बैक प्रेशर बढ़ता है ब्लड का, राइट. लाइक दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ से IVC आता है, ऊपर से SVC आता है, यहाँ से IVC आता है, राइट. तो अगर RV पंप नहीं करेगा तो बैक प्रेशर बढ़ेगा RA में, उसके बाद यहाँ से बैक प्रेशर बढ़ेगा IVC में, IVC से बैक प्रेशर कहाँ, लिम्स में जाएगा, लिम्स में पीडल एडीमा हो जाएगा. लिम्स में पीडल एडीमा क्यों होगा, क्योंकि जो वेन्स हैं यहाँ पर, पीडल वेन्स जो हैं, दैट आर अल्टीमेटली कनेक्टेड टू द कैपिलरीज. तो जब यहाँ पे बैक प्रेशर आया, कैपिलरीज के थ्रू जो फ्लूइड है वो लीक होने लगेगा, राइट. व्हाट इज हैपनिंग, द फ्लूइड इज गेटिंग लॉस्ट इनटू द थर्ड स्पेसेस. अब इसकी वजह से इफेक्टिव जो ब्लड वॉल्यूम है वो तो कम हो गया, सारा ब्लड तो यहाँ से बाहर आ रहा है, एडीमा के फॉर्म में बाहर आ रहा है, तो इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया. इसकी वजह से रास एक्टिवेट हो जाएगा. प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में भी यही होता है. जब हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होता है इस केस में, कि ग्रेविटी की वजह से ब्लड पूलिंग होने लगती है पैरों में, राइट. ब्लड पूल्स इनटू द वेन्स, पीडल वेन्स में ब्लड पूलिंग होने लगती है, फिर से कैपिलरीज के थ्रू जो फ्लूइड है वो बाहर आने लगता है. इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम फिर से कम हो गया, वेसल्स के अंदर ब्लड कम हो गया, क्योंकि वेसल्स के थ्रू ब्लड, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड बाहर आ रहा है. जैसे ही इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, तुरंत रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. सो नाउ वी सी दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म. अब मैकेनिज्म में, दिस इज द फ्लो चार्ट दैट आई हैव टेकन फ्रॉम गाइटन. दिस इज द मेन फ्लो चार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस, और इसी में ही पूरा मैकेनिज्म छुपा हुआ है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं दैट आई हैव लिस्टेड हेयर इन द साइड, राइट. सो व्हाट वी सी, फर्स्ट स्टेप इज की डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, रेनिन रिलीज होगा. अब बेसिकली रेनिन इज एन एंजाइम, और ये जो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, राइट. और रेनिन हमारे ब्लड में फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर तक परसिस्ट करता है, उसके बाद ये चला जाता है और इट गेट्स डिग्रेडेड और इट फंक्शंस गेट्स ओवर, राइट. सो अब क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 बना. एंजियोटेंसिन 1 इज एक्चुअली अ माइल्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर. ये भी 30 मिनट्स टू 1 आवर तक ही हमारे ब्लड में रहता है. इसका कोई बहुत मेजर एक्शन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, राइट. अब एंजियोटेंसिन 1 जो होता है ये लंग्स में जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2. कैसे, देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड ACE एंजाइम विच इज नोन एज एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम. ये एंजाइम कौन रिलीज करता है, एंडोथीलियम ऑफ द लंग वेसल्स, राइट. ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है. Angiotensin 2 is actually a potent vasoconstrictor which remains in the blood only for 1 to 2 minutes, right? Or because it is rapidly inactivated by angiotensinases. यहाँ से ये inactivate हो जाता है, right? अब ये angiotensin 2 करता क्या है? The modes of action. So the first one is vasoconstriction of the arterioles, right? ये क्या करेगा, arterioles को जाके constrict कर देगा. तो क्या होगा, arterioles constrict होंगे तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बॉडी का बढ़ जाएगा. टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, राइट. नाउ द सेकेंड थिंग दैट इट डज कि ये थर्स्ट बढ़ाता है. हाउ, थर्स्ट बढ़ाने का तरीका है, इट एक्ट्स ऑन सब फोर्निशियल ऑर्गन. दिस इज एन ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, यू विल स्टडी इन CNS, राइट. इट इज अ सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन, मतलब ऐसा ऑर्गन विच इज नॉट सराउंडेड बाय द ब्लड ब्रेन बैरियर, राइट. थर्स्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, पेशेंट ज़्यादा पानी पिएगा. ज़्यादा पानी पिएगा तो क्या, इंक्रीज वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज़ व्हाट यू वांट ना, क्योंकि हमारा आर्टीरियल प्रेशर कम हो रहा था तो अब हम उसको बढ़ाना चाहते हैं. तो थर्स्ट इज वन ऑफ द अदर मैकेनिज्म्स. द थर्ड इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म इज डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय द किडनीज.
ये क्या करेगा, वाटर और सॉल्ट का एक्सक्रीजन कम कर देगा, NaCl और वाटर का एक्सक्रीशन कम कर देगा बाय टू मेन मेथड्स. देयर इज वन डायरेक्ट इफेक्ट एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट क्या है, एड्रीनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेगा. हम यूजुअली इसी को ज़्यादा जानते हैं, इसी वाले इफेक्ट को, बट द मेन इफेक्ट इज कॉज्ड थ्रू दिस वन डायरेक्ट इफेक्ट, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज द डायरेक्ट इफेक्ट, वी सॉ दैट हमने एक नेफ्रॉन बनाया था यहाँ पे. लेट्स कॉपी दिस हियर एज वेल बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस हियर, राइट. जस्ट वेट अ मिनट. ओके, सो ये हमने एक नेफ्रॉन बनाया था, राइट. एंड लेट्स इरेज द अनयूजुअल थिंग्स हियर जो हमारे काम की नहीं है. सो या ये जो हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल है, द इफरेंट आर्ट्रियोल दैट वी सी हियर, ये इफरेंट आर्ट्रियोल कंटिन्यू करता है और आगे जाके ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाता है, राइट. जो हम वासा रेक्टा में भी पढ़ते हैं, राइट. ये इफरेंट आर्ट्रियोल जाता है and it continues alongside with the loop of Henle. Yes, and this forms the peritubular capillary. Peritubular capillary. Now let us see what is the mechanism of action. अब क्या हुआ कि जैसे ही angiotensin 1 रिलीज हुआ, इसने क्या किया, आर्टीरियोल्स का कंस्ट्रिक्शन कर दिया, इसने एफरेंट आर्ट्रियोल का कंस्ट्रिक्शन कर दिया. तो क्या होगा, ब्लड फ्लो थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल डिक्रीज होगा, यहाँ से GFR भी कम आएगा, राइट. GFR भी कम आएगा. अब ये GFR जितना भी जो फ्लूइड तुम्हारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में गया, फिर आगे ट्यूब्यूल्स में गया, राइट. एंड इट रीचेज हियर द लूप ऑफ हेनली. ऑलरेडी एफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्टेड था, इफरेंट आर्ट्रियोल में भी बहुत कम ब्लड है, बहुत ही कम, और ब्लड फ्लो बहुत धीरे धीरे हो रहा है. तो बेसिकली अब क्या हो गया, ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड इन द इफरेंट आर्ट्रियोल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड ऑल्सो डिक्रीजेस. ब्लड कम है तो धीरे धीरे फ्लो करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा तो क्या होगा, we see that the thin descending segment of the loop of Henle is actually permeable to water. तो क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी. उसके बाद जब यही असेंडिंग थिन सेगमेंट की तरफ आएंगे हम लोग, तो यहाँ से सोडियम भी एब्जॉर्ब हो जाएगा. क्योंकि इफरेंट आर्टीरियोल में ब्लड फ्लो की जो स्पीड थी बहुत कम थी, जितना भी GFR निकला, भले ही थोड़ा बहुत निकला, वो भी सारा एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है. सो दिस इज द मेन एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इन द decreased excretion, or we can say the absorption of salt and water by the kidneys, right. So this is all for today and thank you so much.